Hello girls. So our next article is article 31. That is properties of the conjugate hyperbola. As we have done in the previous lecture, if this is a hyperbola whose equation is x square over a square minus y square over b square is equal to 1, then equation of conjugate hyperbola is x square over a square minus y square over b square is equal to -1. सो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं. सो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है इस हाइपरबोला के लिए और ये वाई एक्सिस कॉन्जुगेट है. सो इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसके लिए वाई एक्सिस विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस विल बी द कॉन्जुगेट. सो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if a pair of diameters be conjugate with respect to hyperbola, then they will also be conjugate with respect to the conjugate hyperbola. So ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की passing through the center. Say this is the diameter of the hyperbola x square over a square minus y square over b square equal to 1, and this is the conjugate diameter. So this is the set of conjugate diameters with respect to this hyperbola. Now let the diameters be y is equal to m1x and m2x because they passes through the center. So हमारे पास condition क्या होती है, that m1 m2 should be equal to b square over a square. Now if I consider this conjugate hyperbola, तो conjugate hyperbola की equation क्या होती है basically x square over a square minus y square over b square equal to -1. तो ये जो माइनस था ये यहाँ ले आए, इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख सकते हो. तो जब आप यहाँ ले आए इसका मतलब a square is replaced by minus a square and b square is replaced by minus b square. So that means, therefore in the equation of conjugate hyperbola we have minus a square and minus b square instead of a square and b square. Therefore the lines y is equal to m1x and m2x will be conjugate diameters to the hyperbola if m1 m2 is equal to again minus b square over minus a square which is equal to b square over a square. So these two lines will be the set of conjugate diameters for this hyperbola as well as its conjugate hyperbola. Next देखो, only one pair of conjugate diameters of a hyperbola meets the hyperbola in real points. So ये भी आपको पता होना चाहिए result. Basically they are saying one of a pair of conjugate diameters meets the hyperbola in real points. तो आप ये देखो, मैंने ये जो बनाया है इसमें से सिर्फ एक डायमीटर है, ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स है जिसमें से सिर्फ एक डायमीटर हाइपरबोला को मीट करता है रियल पॉइंट्स पे, और जो दूसरा डायमीटर होता है जो इसका कॉन्जुगेट है वो इस हाइपरबोला को मीट नहीं करेगा. तो इसको प्रूव कैसे किया है कि लेट m1x एंड m2x बी कॉन्जुगेट डायमीटर्स विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज द कंडीशन. नाउ y इज इक्वल टू m1x को अगर मैं इसमें पुट कर दूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो मैंने ये पुट किया, ये क्वाड्रेटिक इन x आ गई, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया. अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव कब होगा, देखो अगर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो इमेजनरी वैल्यूज़ आएंगी. सो यहाँ से फॉर x टू बी रियल दिस शुड बी पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m1 स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव. सो दे आर सेइंग this equation gives the abscissa of the points of intersection of diameter y is equal to m1x and the hyperbola. अब अगर मैं y is equal to m2x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी तो m1 की जगह यहाँ m2 आ जाएगा. यूजिंग द कंडीशन m1 m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से m2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 कर दी पुट. जब ये यहाँ पे m1 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया. अब आप ये देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m1 स्क्वायर पॉजिटिव होगा. अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m1 स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये वाली टर्म नेगेटिव होगी.
So that means it will be having imaginary values if this has real values. On the other hand, अगर मैं इसको नेगेटिव बोलती तो यहाँ से इमेजिनरी वैल्यूज आती, इन दैट केस ये पॉजिटिव हो गए, यहाँ से रियल आ जाती. सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर m1x वाली लाइन हाइपरबोला को कट कर रही है रियल पॉइंट्स पे, तो m2x की इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं. और अगर y इज इक्वल टू m1x के साथ इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब नहीं वो इंटरसेक्ट करती हाइपरबोला के साथ, तो y इज इक्वल टू m2x के साथ रियल आएंगी, मतलब फिर ये वाला डायमीटर हाइपरबोला को कट करेगा. सो नाउ न्यूमरेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ नंबर 3 एज वेल एज 4 आर बोथ पॉजिटिव. सो राइट हैंड साइड ऑफ नंबर 4 इज नेगेटिव. In other words, if y is equal to m1x cuts hyperbola in real points, then y is equal to m2x cuts hyperbola in imaginary points. Similarly, if y is equal to m1x cuts in imaginary points, then y is equal to m2x cuts in real points. So property 3 भी इसी के साथ मिलती है. अब इसमें ये बोल रहे हैं if a diameter meets one hyperbola in real points, then the conjugate diameter will meet the conjugate hyperbola in real points. So यहाँ से देखो अगर आप कि अगर एक डायमीटर एक हाइपरबोला को मीट करता है तो उसका जो कॉन्जुगेट डायमीटर है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को मीट करता है इन रियल पॉइंट्स. सो इसके लिए क्या किया, हमने लिया ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स. सो y इज इक्वल टू m1x के साथ आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ये आ जाएगा. नाउ फॉर दिस टू बी रियल, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए. अब क्या किया, अब मैं y इज इक्वल टू m2x का इंटरसेक्शन फाइंड करूंगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला के साथ. सो यहाँ -1 आएगा. कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ -1 आता है. तो y इक्वल टू m2x के साथ आप जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, x² कॉमन आ गया और ये वैल्यू आ गई x² की. सो अब इसको रियल होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स m2² इज ग्रेटर देन b² ओवर a². यहाँ से m2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, m1 m2 इक्वल टू b² ओवर a² वाली, तो ये आ गया. मतलब m1² शुड बी लेस देन b² ओवर a², और यहाँ से m1² जो है वो लेस देन b² ओवर a² आ रहा था. तो इसका मतलब नाउ this will give real values of x if this is positive. That means m1² should be less than b² over a², and this will give real values of x if this is positive. इसके पॉजिटिव होने से m2² ग्रेटर देन b² ओवर a². यहाँ से m2 की वैल्यू पुट की तो यही आ रहा है. सो विच इज़ ट्रू, hence the result. So I hope this is clear to you. Next is property 4. If a pair of conjugate diameters cut two conjugate hyperbolas in P and D respectively. तो ये देखो, ये इन्होंने दो conjugate hyperbolas, ये एक hyperbola बनाया और ये इसका conjugate hyperbola बनाया. So and conjugate diameters are cutting them in P and D. So ये एक diameter इस hyperbola को कट कर रहा है P पे और इसका conjugate diameter कट कर रहा है conjugate hyperbola को D पे. We have to prove that CP² minus CD² is equal to A² minus B². तो P जो पॉइंट है वो इस हाइपरबोला पे है, तो इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन A secant θ1, B tangent θ1 हो जाएगी. D जो पॉइंट है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे है. तो जब भी हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे पैरामीट्रिक पॉइंट लेना होता है तो हम लेते हैं A tangent θ, B secant θ. तो एंगल चेंज करने के लिए θ1 और θ2 ले लिया. सो अब हमें चाहिए क्या, CP² माइनस CD² इक्वल टू A² माइनस B². सो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जब इन्होंने CP² फाइंड किया तो ये ठीक है, ये आ जाएगा -0 का, ये CP² है माइनस ये CD² है. सो ये θ1 की टर्म्स में आ गया और ये θ2 की टर्म्स में.
सो अब इसको सॉल्व करना आगे मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ θ1 है और यहाँ θ2 है। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, CP की स्लोप भी निकाल सकते हैं हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से, ऐसे ही CD की स्लोप निकाल ली। तो क्योंकि ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं सो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू b² ओवर a²। सो यहाँ से ये देखो b² ओवर a² इसके साथ कैंसिल होके आई एम गेटिंग sin θ1 इक्वल टू sin θ2। दैट मीन्स आइदर θ1 इज इक्वल टू θ2 और पाई माइनस θ2। सो अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ यूज़ की है, θ1 इक्वल टू θ2 करोगे तो ये आएगा, अगर पाई माइनस θ2 भी करोगे तो भी स्क्वायर होने की वजह से यही आ जाएगा। सो अब हमारे पास a² कॉमन लिया सीकेंड स्क्वायर θ2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर θ2 प्लस b² कॉमन लिया टेंजेंट स्क्वायर θ2 माइनस सीकेंड स्क्वायर θ2, तो माइनस कॉमन लेके ये बन गया, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। सो आंसर इज a² माइनस b²। सो इसका सेकेंड पार्ट है टेंजेंट्स एट p, d, टेंजेंट्स एट p एंड d एंड अदर एंड्स ऑफ डायमीटर्स, मतलब d के बाद d' पे टेंजेंट, p के साथ p' पे टेंजेंट, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो आपने ये शो करना है कि अगर मैं PP' और DD' पे टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ तो दीज टेंजेंट्स आर मेकिंग अ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस लाई ऑन एसिम्प्टोट्स। इस पैरेललोग्राम की जो वर्टिसेस हैं वो एसिम्प्टोट्स पे लाई करती हैं एंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज कांस्टेंट। तो ये जो KLMN हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया जो है वो कांस्टेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सो अब हम क्या करेंगे P पॉइंट हमें पता है ये है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P ये पॉइंट है, टेंजेंट इज गिवन बाय T इक्वल टू 0 और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई क्योंकि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसके बाद D के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, स्लोप ऑफ CD निकाल ली। सो टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू CD। We are saying tangent at P is parallel to CD. Okay. Similarly, we can prove that tangent at P' is parallel to CD and the tangents at D and D' are parallel to CD. Tangents at D and D' are parallel to CP आना था यहाँ पे. So, hence tangents at PP' and DD' form a parallelogram. अब हमने ये शो करना है कि इन टेंजेंट्स की जो वर्टिसेस हैं वो सिम्प्टोट्स पे लाई करती हैं। सो दीज आर द टेंजेंट्स एट P एंड D। रिमेंबर D के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं और इसकी जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट D निकालोगे तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के साथ निकालोगे, मतलब x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू -1। इसके लिए आप T इक्वल टू 0 करके टेंजेंट एट D फाइंड करोगे तो ये टेंजेंट आ जाएगी। सो टेंजेंट एट P एंड D, इसको सॉल्व करके they have found the point of intersection. So ये जो point of intersection find किया तो ये आ गया which is the equation of the asymptote. So similarly other angular points of parallelogram also lie on one or other of the two asymptotes. Now we have to find area of parallelogram KLMN which is equal to 4 times area of parallelogram CPKD which is equal to 2 times area of triangle CPD, that is 8 times area of triangle CPD. सो C सेंटर है, P के कोऑर्डिनेट्स ये लिए हुए हैं और D के ये लिए हुए हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप ये फाइंड कर लो।